अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा ध्यान देंगे, जो आई थिंक आप लोगों को पता भी होगा अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। So, in the legal language or in the general language, the law student consider Constitution of India as only constitution. So, whenever you will be studying in a law college, you will not be मतलब saying Constitution of India, Constitution of India again and again. ठीक है? You will be saying only Constitution. Constitution बोला जाता है, but लिखना Constitution of India ही पेपर में. तो about Constitution, सबसे पहले बात है Constitution, biggest source, Government of India Act, I have already told you. This is a part of Indian polity, right? Next, father of the constitution. Who is the father of the constitution? इससे पूछो कि भाई बताएगा. अंबेडकर, डॉक्टर बी आर अंबेडकर. अरे हाँ, आपका अनम्यूट हो रखा है. माइक अनम्यूट कर लो क्या आपको? आपकी आवाज आ रही थी वाली से भी. Father of constitution is Dr. B. R. Ambedkar. आस्था कश्यप. What is the full form of B. R. Ambedkar? What is the full form of B. R. Ambedkar? आस्था कश्यप. मैम भीमराव अंबेडकर. ओके, भीमराव अंबेडकर. ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज द भीमराव अंबेडकर. नाउ व्हाई इट इज नोन एज फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज़ ही वाज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी. ड्राफ्टिंग कमिटी, he was the head of the drafting committee. Now what is drafting committee? जब whenever the constitution was made by the constituent. अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात बताती हूँ. कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? Who made the constitution? Constituent Assembly. The Constitution of India was made by the Constituent Assembly. Now, Constituent Assembly consists a lot of committees. Committees just means to divide the work of the people who were the member of the Constituent Assembly. मैं दोबारा बता रही हूँ, Constitution of India का सबसे मेजर सोर्स रहा है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. Next, who was the father of the constitution? Father of the constitution is Dr. Bhimrao Ambedkar. Now, why he was known as the father of the constitution? Because he was the head of the drafting committee. Now, again, what is the meaning of drafting committee? Drafting committee का मतलब क्या है? Drafting committee stands basically whenever the constitution was made by the constituent assembly. The constituent assembly consists a lot of committees. ठीक है, committees का मतलब क्या होगा? Just to divide the work of the people. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब होता है एक हॉल था, देयर वाज अ हॉल, जिस हॉल के अंदर में सारे के सारे मेंबर्स बैठे थे. ठीक है, उस प्रॉपर हॉल को बोल दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ये क्या है? इट्स जस्ट अ हॉल. हॉल था जिसमें सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम चल रहा था. कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट अ not a like easy kind of thing. ठीक है, it was a very difficult thing to do by the country which was 200 years से वो किसी की कॉलोनी थी. Very difficult task for all those people. Now what happened is, what happened was to Constituent Assembly divide the work of every person according to their specialization. ठीक है, obviously पता है कि specialize in logical reasoning, cognitive aptitude. No, और वो वाले सर जीके करंट अफेयर में नहीं हो पाएंगे, तो एवरीबॉडी का काम जो भी होता है एज पर स्पेशलाइजेशन ही होता है. राइट, होता क्या है ना? व्हाट वाज द मेन वर्क? तो व्हाट दे डू इज, व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने अपना काम को डिवाइड कर दिया. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम आता है वो आता है ड्राफ्ट करने का, यानी कि हाउ टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हाउ टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ये कॉन्स्टिट्यूशन है, तो व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन. समझ रहे हो? There were lot of committees. There were I think 9 committees out of which. ठीक है, अब उनमें सबसे इम्पोर्टेंट काम आता है ड्राफ्ट का. ड्राफ्ट कौन करेगा? ड्राफ्ट का मतलब आता है व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट शुड बी इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब ये सारा काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया. व्हाई ही वाज चोजन एज द हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी? Because he was a lawyer, he was a social activist, and he was a scheduled caste member. मतलब
he had a lot of degrees, ठीक है, जिसके अभी तक हमें भी नाम नहीं पता. He was a very intellectual or knowledgeable person regarding the laws and regarding the provision which should be in a country, right? तो that's why इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बनाया गया. अब जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा है, आप खुद सोचो, जो मैंने ये बुक पूरी लिखी है, किसी ने इसको पंच किया है, किसी ने इसको ड्रॉ किया है, या किसी ने कुछ और किया है, तो वो तो ना क्रेडिट लेके जाएगा. क्रेडिट तो मेरा है ना, सारे हैव मेड द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक. तो ये जो कंटेंट है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है, ठीक है. दैट्स व्हाई ही नोन एज अ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कल मैंने एक बच्चे से पूछा था 9th क्लास में कि फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तो पता था क्या होता है, बट व्हाई ही वाज नोन एज फादर, ही इज नोन एज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट फैक्ट. ठीक है. तो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, व्हाई? बिकॉज़ ही वाज हेड ऑफ द क्लास. याद रख क्लियर. नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले बात है कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट सिटिंग कब दी थी. संकेत, फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अपार्ट फ्रॉम संकेत, एनीबडी एल्स? संकेत, do you know the answer of first sitting of constituent assembly? Because I don't want to waste the time as the topic is so long. अंतरा, आपने बोला भी. Yes, ma'am. आयु, संकेत. No, ma'am. आप बोले anybody else from? बेटा, it's very good that you are so active in the class, but let the other people also answer, right? No problem. आगे का ध्यान रखना. It's very good. It's good to see कि तुम आंसर दे रही हो. But अगर जब मैं किसी और से पूछी ना कि know the answer, just write down in the chat box, वो भी डायरेक्ट वाला, ठीक है? Very good कि तुम अच्छा पढ़ रही हो, no doubt. But at least let the other people answer ना, ठीक है? चलो, संकेत का टाइम गया. अंतरा, बात बोलो. आपने क्या बोला था, मैंने सुना नहीं. 1930 बोला था मैम ने. 1930 बोला था आपने? हाँ. नो, नॉट श्योर. अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स बताएंगे मुझे. और 1946 मैम. 19 1946. बताइए. 1946, ma'am. करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड. आईफोन, रीना, वेरी गुड. और किसने आंसर? स्पर्श, वेरी गुड, करेक्ट. चलो, शाबाश. 9 दिसंबर 1946, करेक्ट. तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लगता है. अच्छा, कितना टाइम लगा था विजय? डू यू नो द ड्यूरेशन ऑफ, आई थिंक, ऋषिका, ऋषिका बताओ. अच्छा, वेरी, बहुत सही हो तुम तो. आईफोन वाले 2 साल लगे थे. अच्छा जी, थोड़ा पढ़ लो पहले. और ऋषिका, बताइए बेटा. ये जो बच्चे मेरे पूछने पे आंसर नहीं देते ना, तुम लोग भी कोई क्वेश्चन पूछना. संकेत, Ma'am, it is देखो, Sanction I 162 days. will let you know the answer of the father of the nation once the recording is off, right? Because I don't think he should be the father of the nation, right? I'll explain it to you. ठीक है, बाद में लेकर आना. I think one of the major reason of calling Mahatma Gandhi the father of the nation because he contributed a lot in obtaining the Indian independence from the Britishers, and moreover he also belonged, मतलब basically he also considered वो सत्याग्रह as a means of protesting, ठीक है, and the same ideas also obtained by the Constitution Assembly, ठीक है. और क्या हो सकता है? हाँ, यही है बस. देखा जाए तो मेजरली इंडिपेंडेंस, क्योंकि आफ्टर अराइविंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू इंडिया 1950 ही वाज जस्ट डूइंग अ लॉट ऑफ मूवमेंट फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस. तो आई थिंक दिस इज द मेजर रीजन ऑफ फादर ऑफ द नेशन. बट डू यू नो, मैंने कल आपको बताया नहीं था. मैंने आपको कल एक चीज ही बताई थी जस्ट बिकॉज वो आपकी थोड़ा पेपर का इंपॉर्टेंट नहीं था. सुभाष चंद्र बोस,
Have you heard about Subhash Chandra Bose? Yes, ma'am. सुभाष चंद्र बोस की जो एक थी वो थी इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने एक आर्मी, आई थिंक हुआ क्या था, मुझे एक बात और बताओ, जस्ट टू मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ जनरल नॉलेज, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट बट ठीक है पढ़ लो। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, बट व्हाई दिस पर्टिकुलर मूवमेंट वाज द लास्ट मूवमेंट? लेट मी टेल यू, आपको पता होगा सेकंड वर्ल्ड वॉर हमारा स्टार्ट हो रहा था, ठीक है? बहुत कम लोगों को पता रहता है कि मुझे बहुत टाइम, क्या नाम है, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट और सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएट मैं बीएल की, तभी मुझे ये चीज पता लगी थी, ठीक है? क्योंकि हमारे टीचर्स इतने तो बढ़िया होते नहीं, सब चीजें पढ़ाते हैं। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हैपेंड इन 19 एक सेकंड कोई नहीं बोलेगा, आईफोन जस्ट आप मैसेज करके बताएंगे मुझे सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। आईफोन आपका मैसेज नहीं आया मेरे पास, आपका आंसर नहीं आया, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? शाबाश, थोड़ा पढ़ लो। वेरी गुड संकेत। 1939 से लेके 1945, 1939 से लेके 1945 में आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है ना। दिस इज अ मेजर टाइम। ये होता है ब्रिटिशर्स भी इसमें इंक्लूड रहते हैं। तो ब्रिटिशर्स व्हाट दे बेसिकली क्या किया था ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स सेड टू द और बेसिकली रिक्वेस्टेड टू द महात्मा गांधी, ठीक है? ब्रिटिशर रिक्वेस्टेड टू महात्मा गांधी दैट प्लीज हेल्प अस एंड वंस यू हेल्प अस हम आपको रिलीज कर देंगे, यू विल बी योर इंडिया विल बी द इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है? Now this was the request by the Britisher from the Indian Mahatma Gandhi and other leaders, right? क्या बोला था in 1942 when Second World War happening in the world, there was a request from the side of Britishers to the Mahatma Gandhi and other leaders also that you will please help us, and once you help us and once we will win the war, ठीक है? We will be declared India as the independent country with the independent nation. Now what happened is, however, और अच्छा रिक्वेस्ट क्या कर रहे थे, मैंने आपको बोला रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट व्हाट दे वर रिक्वेस्टिंग इज, दे वर रिक्वेस्टिंग वाज कि प्लीज गिव अस अ लॉट ऑफ सोल्जर्स, आप लोग लोगों को भेजिए टू हेल्प अस इन द वॉर। हाउएवर मेनी लीडर रिजेक्टेड दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, और हुआ क्या था, रिक्वेस्ट के बिल्कुल बियॉन्ड किया ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दे हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, राइट? क्या किया था, दे हैव टेकन अ लोन फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज। अब वॉर के तो बिल्कुल बेकार चांसेस, वो लोग वो जीते नहीं, ठीक है? तो आफ्टर ये क्या नाम है, तो जब उन्होंने लोन लिया तो दे वर नॉट एबल टू रीपे देयर लोन्स बिकॉज़ सेकंड वर्ल्ड वॉर कॉज़ अ लॉट ऑफ अ मैसिव डिस्ट्रक्शन आई वुड से। तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहली बार जो लोन लिया था उन्होंने तो पहली बार तो रीपे करा ही नहीं था, दे हैवंट रीपे द लोन, और इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अस और इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन दे हैव इंक्रीज्ड द टैक्स रेट, ठीक है? जस्ट टू मतलब यहाँ अब बोलते हैं ना कि कहीं और नुकसान हो गया तो हमको कहीं से फायदा हो रहा है तो वहीं से और फायदा निकालने का सोचते हैं, तो उन्होंने ऐसा किया, ठीक है? बेसिकली हुआ क्या था, 1942 के टाइम पे ब्रिटेन बिकेम वेरी वेरी वीक, जो मुझे ऐसा लगता है बहुत वीक हो गए थे, मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ मेजर, दिस इज अ ह्यूज रीजन, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंडिया महात्मा गांधी का जो ये लास्ट मूवमेंट था, ठीक है? मेरे ये मूवमेंट नहीं भी होता ना, ऐसा बोलते हैं मूवमेंट ये नहीं भी होता देन ऑल्सो क्या नाम था, इंडिपेंडेंट हो ही जाता, बट यस महात्मा गांधी ने काफी मतलब महात्मा गांधी सीडन वेरी काइंड ऑफ क्लेवर वाला काम किया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कैसे मूवमेंट क्रिएट करना, ऑब्वियसली बात है, एक तो इंसान ऑलरेडी एक तरीके से परेशान है, दूसरे तरीके से वो भी और आ गया, तो दैट्स व्हाई द मेजर रीजन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन वाज द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड लीडर्स सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ऐसा हुआ था। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब जैसे जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ये क्यों, जस्ट बिकॉज सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वो बोलते हैं ना जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, मे बी स्टिल वी आर अ कॉलोनी, वी आर अ कॉलोनी, ऐसा क्यों होता था, ठीक है? तो ये हो गया फर्स्ट सिटिंग, तब क्लियर हुआ मेरी बात, एम आई क्लियर? यस मैम। बस रीना को क्लियर हो रहा है, बाकी को क्लियर नहीं हो रहा?
हम्म, चलो अभी 2 दिन तक तुम्हारी जीके की क्लास नहीं है, यू हैव नो जीके क्लास फॉर 2 डेज। तो आप लोग करना क्या है, कम से कम 10 मॉक्स करो इन 2 दिनों में, ठीक है। और कोशिश हो तो सारे मॉक्स कर दो, नहीं हो तो एटलीस्ट जीके और करंट अफेयर के कम से कम 10-10 मॉक्स करो, ठीक है। ये मॉक्स ही आपको बताएंगे बिकॉज आप लोग टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं आता है। किसी ने मॉक्स करे हैं क्या? मॉक कोई दे रहा है यहाँ पे? नहीं यार, बता दूंगी कोल्ड वॉर में क्या है, वैसे पूछते तो नहीं, आज तक तो नहीं पूछा। ये पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है। मॉक्स कौन कौन कर रहा है? सोया कर रही है बस मॉक्स, बाकी और कोई नहीं दे रहा मॉक। शाबाश। Please attempt as many as mocks you can because this is the last kind of, बोल सकते this is the last weapon in your hands so that you can clear your CLAT exam, ठीक है। प्लीज कर लो क्योंकि दिस इज द लास्ट। और मैं जो सच्ची बता रही हूँ 29 के बाद में, और ये पूरा वीक 29 से पूरा एक वीक यू विल नॉट बी गोइंग टू स्टडी जस्ट बिकॉज दिस इज द फेस्टिव सीजन एंड इट्स नॉट योर मिस्टेक। हाँ, वो आता ही तो हर एक बार है पूरा फेस्टिवल। So kindly attempt as many as more you can because this is the last paper in your hands through which you can improve your marks, ठीक है। मॉक्स करो, बार बार मैं बोल रही हूँ मॉक्स देते रहो, जितने मॉक्स करो। फर्स्ट सिटिंग ऑफ कांग्रेस असेंबली हो गया 9 दिसंबर 1946। ओके नेक्स्ट आ गया। नाउ 2 years 11 months and 18 days कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगे थे, ठीक है। 2 years 11 months 18 days। वेरी गुड विजय, वेरी गुड। विजय वे आर यू फ्रॉम? तमिलनाडु, कोयम्बतूर। तमिलनाडु। ओके ओके, गुड। ठीक है, 2 years 11 months 18 days, ठीक है। और कितने सेशंस कितने हुए थे? टोटल सेशन की ड्यूरेशन है, दिस इज अ टाइम एंड सेशन हो गए, टोटल सेशन हो गए 165 सेशन हो गए थे, ठीक है। इतने सेशंस क्लियर हो गया? ठीक है। अरे बोलते बोलते मैं तो थक जाती हूँ, ठीक है बेटा। एक सेकंड, एक सेकंड मैं रफ करके दोबारा लिख देती हूँ। टोटल सेशंस हुए हैं आपके, ये पॉइंट अलग है। टोटल डेज हैं आपके 165 डेज, सेशंस 11 सेशंस। ड्यूरेशन ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन 2 years 11 months 18 days, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट। अच्छा विजय, यू वर प्रेजेंट इन द यस्टरडेज क्लास? No, Bhavan. ओके ओके I went ओके, to school. ठीक है। कौन देगा आंसर? स्पर्श। ओके स्पर्श, टेल मी अबाउट साइमन कमीशन। व्हेन डिड साइमन कमीशन केम इन इंडिया एंड बेसिकली हुआ क्या, सब बताओ। 1 second, ma'am, please. हाँ
Arnav, you tell. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। संकेत, आप बताओ अबाउट साइलेंट कंडीशन। I think Ayush is absent in today's class. ठीक है, आप मैसेज कर देना, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, अब ओके। अच्छा मुझे आज अब मुझे पहले बताओ, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में ना तीन तरह की बातें होती है, थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री कॉन्सेप्ट्स। पहला है चैप्टर्स, चैप्टर्स पहला है पार्ट्स, दूसरा है चैप्टर्स, तीसरा है स्केड्यूल्स। पार्ट्स नॉर्मल, वन पार्ट, टू पार्ट, थ्री पार्ट्स। टोटल पार्ट्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 23। ठीक है। अब इन ये पार्ट्स ना, पार्ट्स कुछ नहीं है, ये टॉपिक है। क्या है? टॉपिक्स है, ब्रॉड टॉपिक है ये। ठीक है, जैसे सिटीजनशिप ब्रॉड टॉपिक, सिटीजनशिप को फंडामेंटल राइट ब्रॉड टॉपिक। तो ये टॉपिक्स है। क्या है ये? टॉपिक्स है। पार्ट के अंदर ये टॉपिक्स दे रखे हैं। अब ये भी बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। अब फर्दर टॉपिक्स के हैं बहुत सारे और सब टॉपिक्स। ठीक है, ध्यान से बात सुनना, क्योंकि बहुत बच्चों को ये डिफरेंस ही नहीं पता होगा, मैं दोबारा बता रही हूँ। मैं टेल यू, पार्ट्स मींस के टॉपिक्स, 1 2 3 4 ऐसे टॉपिक्स, अ लॉट ऑफ टॉपिक्स। अब इन टॉपिक्स के फर्दर पार्ट्स होते हैं, यानी कि फर्दर सब टॉपिक्स। क्या होते हैं? फर्दर सब टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। अब फर्दर टॉपिक्स ये होते हैं। ठीक है, अब इन फर्दर टॉपिक्स को बोला गया है चैप्टर। दीस फर्दर टॉपिक आर नोन एज चैप्टर। ठीक है, टॉपिक्स के फर्दर टॉपिक नोन एज चैप्टर। अब ये बात क्लियर हो गई। पार्ट्स आर द मेजर टॉपिक, whereas chapters are the subtopics. Clear हो गई बात? And what about schedules? Schedules are the certain thing, basically they are the certain thing which is not included in parts and chapters, just not to confuse the people about the Constitution of India. ठीक है, कि Constitution of India is a very complicated language, so just to ensure कि ये और ज्यादा complicated ना हो, तो chapters और parts के अंदर में जो चीजें नहीं लिखी गई हैं, ठीक है, these schedules वो चीज है। बेसिकली इट्स एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ चैप्टर्स, हम ये बोल सकते हैं। चैप्टर्स तो मत बोलो, पार्ट्स हम बोलो। हाँ, schedule can be known as extended version of parts. Basically it's an additional information, additional information, और इजी होती है बहुत ज्यादा समझने में कॉन्स्टिट्यूशन को। तो schedules are the additional information, ठीक है, and schedule make the constitution very easy. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? Let me tell you again, parts are the topic, are the broad topic, and chapters are the subtopics. ठीक है, schedules are the additional information which may not be included in the parts and chapters. Clear हो गया? आई थिंक सुबह आपको ये सेम कॉन्सेप्ट शायद आपको सर ने बताया था, तो बट मुझे ऐसा लगा कि मुझे दोबारा बताना चाहिए क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अभी क्लियर हो गया ये दोनों सारी चीजें आपको? चलो, मेरा बेस तो नहीं हुआ ना बताना। किस किस को सुबह ही समझ में आ गया था ये कॉन्सेप्ट? किस किस को अभी आया है? जोया, आपने कुछ रिक्वेस्ट किया है क्या? डू नॉट डू दैट। चलो
पीपीटी बनाई वो देखे थे, बेसिकली इट वाज सेम चीज। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की रियल फोटो, देखो दिस इज द फोटो ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक्चुअल में। अच्छा मोर, अच्छा एक बात तो बताना भूल गई मैं आपको, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रोविजंस थे, कोई बताएगा? हाउ मेनी प्रोविजंस ओरिजिनली कंटेन्ड इन द इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ। एनीवन? 395 आर्टिकल्स थे और शायद 12 पार्ट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये ओरिजिनल है, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब का है। करेक्ट, ये ओरिजिनल का है ये। और अभी देखा जाए, अभी प्रेजेंटली कितने हैं? प्रेजेंट है 448 आर्टिकल्स है, ठीक है, 22 पार्ट्स हैं और 8 शेड्यूल्स है। स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स थे, प्रेजेंट में 448 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स है, ठीक है। चलो एक बार ये पढ़ो, मेक सेकेंड आई। देखती हूँ इस बार। There are 12 schedules in Indian Constitution. 12 schedules. There are 12 schedules in the Indian Constitution. ऋषिका, आपको प्रॉब्लम हो रहा है क्या नेट में? ज्वाइन ज्वाइन 10-12। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हाउ मेनी मेंबर्स? 385 मेंबर्स, ये आ जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। 385 मेंबर्स की बाइफिकेशन हो रखी है। 292 मेंबर्स इलेक्टेड मेंबर्स थे, ठीक है। 93 मेंबर्स कौन से थे? आपके प्रिंसली स्टेट्स के। कौन से थे? प्रिंसली स्टेट्स के। प्रिंसली स्टेट्स क्या था बेसिकली? प्रिंसली स्टेट्स आर द बेसिकली जो जब ये ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम पे राजा वगैरह हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या बोला, बेसिकली व्हाट दे हैव डिसाइडेड कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू नो ऑल ऑफ द कल्चर, ऑल ऑफ द
क्या नाम है, हर चीज हम नहीं जान सकते हैं डीएसटी। सो दैट वी नीड सच काइंड ऑफ पीपल who are well aware about the culture, about the people, about the tradition, about the concepts of Indian people. So hence they have decided to continue with the Rajawala matter, but they have put the condition in front of the princess state that कि हम लोग आपको रूल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल होता क्या था, ये प्रिंसेस स्टेट्स है, ये प्रिंसेस स्टेट्स इस एरिया में रूल करेगी, बट किसके अंडर में है, ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। हाँ हाँ, हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर। ठीक है, अच्छा, प्रिंसेस स्टेट से क्वेश्चन निकला है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, हु इज द क्या नाम है आपका, हु इज नोन एज द फादर वो आयरन मैन ऑफ इंडिया, हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? हाँ भाई, सरदार आईफोन। वल्लभ भाई पटेल। भीमराव अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। वेरी गुड, ये क्वेश्चन आ रहा है, सरदार वल्लभ भाई, वाई इन्होंने आयरन मैन ऑफ इंडिया, बिकॉज जैसे आयरन हर चीज को जकड़ के रखता है, इन्होंने इंडिया को जकड़ के रखा है, क्योंकि प्रिंसेस स्टेट्स का कॉन्सेप्ट कभी भी सॉल्व नहीं हो रहा था। इट इज बिकॉज ऑफ हिम ओनली दैट ऑल ऑफ द प्रिंसेस स्टेट डिसाइडेड टू इंटीग्रेट विद इंडिया, एंड हेंस दे हैव साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। नाउ व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? होता क्या था, instrument of accession was a document, basically it was a contract, it was an agreement। तो जो भी प्रिंसेस से इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में साइन करती है वो बन जाता है इंडिया का पार्ट। तो with the diplomatic and with the flexible approach of Sardar Vallabhbhai Patel, almost every almost each and every princess state decided to integrate with India, or there were the 3 or 4 states which created a lot of problem। ठीक है, आउट ऑफ जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर और ये सब था, ट्रावणकोर भी था, हैदराबाद तो बहुत गंदा वाला था। ठीक है, चलो सबको पता है एटलीस्ट, वेरी गुड, ये हो गया। ठीक है, तो 385 मेंबर्स थे, आउट ऑफ व्हिच 292 इलेक्टेड थे और 93 फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, एक बात और याद रख लेना कि व्हेन द ब्रिटिशर डिसाइडेड इंडिया टू बी एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, उन्होंने डिक्लेयर किया था, दे हैव डिसाइडेड टू लेफ्ट इंडिया, तो दे हैव गिवन चॉइसेस टू द प्रिंसेस स्टेट जस्ट टू क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos अगेन। उन्होंने बोला था कि यू कैन बी विद इंडिया, यू कैन बी विद पाकिस्तान, और यू कैन बी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब मैं तुमसे बोलूं कि भाई क्या नाम है, संकेत, या तो तुम मेरे साथ रहो, या तो तुम किसी और फैकल्टी के साथ रहो, या तो तुम इंडिपेंडेंट रहो, तो ऑब्वियसली बात है, यू विल प्रेफर टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन, राइट। तो इस वजह से ये क्योस शुरू हो गया था बहुत ज्यादा, और फिर बाउंड्रीज वगैरह भी बहुत ज्यादा, तो हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री भी आती है आप लोगों के एग्जाम में, कभी कभी थोड़ी बहुत आ जाती है। ठीक है, अब बी एन राव was appointed as a constitution advisor of the assembly। ठीक है, बी एन राव was appointed as a constitution advisor of the assembly। First meeting took place in 9 December 1946 with Dr. सच्चिदानंद सिन्हा। हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, बाद में लेटर ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इंटरिम प्रेसिडेंट का मतलब होता है टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज एक्स प्रेसिडेंट ऑन 11 दिसंबर 1946। क्लियर हुआ? द असेंबली हैड 13 कमिटीज, 9 कमिटीज नहीं थी, सॉरी 13 कमिटीज थी। ठीक है, आउट ऑफ विच ड्राफ्टिंग कमिटी इज वन ऑफ द मेजर कमिटी। ठीक है, the all important drafting committee which bore the responsibility of drafting constitution document during the recess of the constitution assembly from July 1970। ये वाला छोड़ दो तुम लोग, ये मत पढ़ो, क्लियर हो जाएगा, छोड़ो। ठीक है, ये लास्ट वाला पॉइंट नहीं पढ़ना, इतने फटाफट से एक बार नजर मारो पूरे कॉन्सेप्ट पे, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो हो गया बेटा। नेक्स्ट, आठ। हाँ बेटा 2 मिनट रुकेंगे प्लीज। पैसा चाहिए, पैसा। चलो नेक्स्ट, देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज के लोग हैं, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटीज पीपल, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, गोपाला स्वामी, ठीक है, अलादी कृष्ण अय्यर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका। एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, माधव राव, ठीक है, पी खतान, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी, ठीक है, गोपाला स्वामी, एम मुंशी, सैयद मोहम्मद अल्लाह, ठीक है, ये हो गया। जो वही चीज लिखी है मैंने इसमें, जो मैंने आपको समझाई है, आपको एक और चीज समझा देती हूँ। आई होप ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, ध्यान से बात सुनेंगे। मेरे को आपको बताना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949। इट वाज प्रॉपर्ली मेड, सब कुछ हो गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रेडी, ठीक है, रेडी, रेडी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया था हमारा 26 नवंबर 1949 को। इम्प्लीमेंट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा जी 26 जनवरी 1950। तो दिस द डेट, ठीक है। रेडी कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1950। बेसिकली माय क्वेश्चन इज टू आस्क कि व्हाई इंडियन गवर्नमेंट वेटेड फॉर अ मंथ, और जबकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन डिस्पाइट ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को फिल एंड फाइनल, व्हाई गवर्नमेंट वेटेड फॉर अ मंथ टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हियर इज द आंसर। कोई मुझे बताएगा, who can tell me the answer that why did the government waited for a month? Can anybody tell me the answer? नहीं पता, चलो I'll tell you. What happened is 1929 को, ध्यान से बात सुनेंगे, 1929 को कांग्रेस ने लाहौर के अंदर एक सेशन किया गया जिसको बोलते हैं लाहौर सेशन। क्या किया गया? लाहौर सेशन, ठीक है। कांग्रेस ने लाहौर सेशन किया 1920 में, 1929 में, और उन्होंने इस सेशन में बोला, ठीक है, दैट ऑन 26 जनवरी 1930 को हम लोग पूर्ण स्वराज अटेन करेंगे, पूर्ण स्वराज, which means complete independence।
which means complete independence. दोबारा बताती हूँ, ठीक है। 19 तो क्या नाम है 26 नवंबर 1949 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके रेडी हो गया था, but it was implemented in 26 January 1950 only. And my question is to ask why the Indian government waited for a month? So basically the answer was in 1929 Congress conducted its important session in Lahore, which is further known as Lahore session because it was conducted in Lahore itself. And in Lahore session में Congress के leaders including Jawaharlal Nehru, Motilal Nehru, they have taken up क्या बोलते हैं उसको, taken an oath that on 26 January 1950 we will attain complete independence, we will post our Indian national flag, ठीक है। But due to certain things में, due to certain reasons की वजह से this was not possible, ये possible नहीं हो पाया। तो hence in order to memorize this particular date 26 January 1930, 26 January mostly sorry 26 January 1930 को memorize करके remember बनाने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 पे इंप्लीमेंट कराया गया। क्लियर हो गया? दोबारा सुन लो। 1929 में कांग्रेस conducted its session in Lahore, which is known as Lahore session because it was conducted in Lahore itself. And in 1920, Congress along with lots of leaders, ठीक है, they have taken a note that on 26 January 1930 we will be declaring India as independent nation with complete independence. कंप्लीट इंडिपेंडेंस को उन्होंने अपनी लैंग्वेज का ऑफिशियल नेम दिया जिसका नाम है पूर्ण स्वराज। कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज मेंटेन करेंगे। एंड बट ड्यू टू सर्टेन रीजन इस डेट पे वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो इन ऑर्डर टू मेमोराइज द डेट ऑफ 26 जनवरी इस वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट किया गया 1950 में। बट लेट मी टेल यू कि आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, टेस्ट स्टडी करने में मिलेगा। ऐसा बोलते हैं मोस्टली फैकल्टीज को भी नहीं पता होता, ऐसा बोलते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को ही इंप्लीमेंट हुआ था, बट ऐसा नहीं है। देयर आर सर्टेन प्रोविजंस व्हिच वाज इंप्लीमेंटेड ऑन दिस डे ओनली, ठीक है। देयर वर सर्टेन प्रोविजन व्हिच वाज इंप्लीमेंटेड ऑन दिस डे ओनली, और उनमें से सिटीजनशिप के काफी प्रोविजंस थे। आर्टिकल 1 था इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया टू बी द भारत, ठीक है, ये सब इंडिया शैल बी यूनियन स्टेट। तो ये कुछ चीजें थी, सर्टेन प्रोविजन से कह सकते हैं 10 से 15 प्रोविजन है जो 26 नवंबर 1949 को ही इंप्लीमेंट हो गए, क्योंकि इनका इंप्लीमेंटेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी था, जैसे सिटीजनशिप का इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी था, ठीक है। इस वजह से कुछ प्रोविजन 10 से 15 प्रोविजन ऑलरेडी 26 नवंबर 1949 को ही इंप्लीमेंट हुए थे। But apart from those provisions, whole of the constitution was implemented on 26 January 1950. And why? In order to memorize the date of Konsula, that is 26 January. I hope यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। Yes, ma'am. हो गया क्लियर? सबका आएगा, आंसर तभी पढ़ाऊंगी, वरना मैं आगे नहीं, मैं तुम लोगों को क्लास से निकाल दूंगी इसका आंसर नहीं आया। I am not fool to ask every time. आप भी पढ़ो आज। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। माई मेरी आवाज आ रही है ना बेटा आप सबको? चलो भैया अपनी तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, मेरी तबीयत बहुत मुश्किल से ठीक हुई है, आज इतनी हुई है प्रॉपर से, वो तो तुमको पढ़ा रहे हैं बस। चलो क्लियर हो गया ये वाला आपको पॉइंट? अब देख लेते हैं एक बार, वही सेम चीज है बट एक बार पढ़ लेते हैं। It was finally passed and accepted on 26 November 1949. The last session of assembly was held on 24 January 1950. तो आप समझिए कि फर्स्ट सेशन हुआ था आपका दिसंबर 6 1946 को,
ठीक है, आपका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन याद रखेंगे अपना, हो फर्स्ट सेशन हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 को, और लास्ट हुआ था आपका 24 जनवरी 1950। या लास्ट ऑफ फर्स्ट सेशन एकदम याद रखिए, ठीक है। विच यूनानिमसली इलेक्टेड डॉक्टर, यूनानिमस का मतलब होता है, यूनानिमस मींस के मतलब सारे बंदे इनके फेवर में थे, दैट ही शुड बी द लीडर। जैसे हुआ क्या था, व्हेन जवाहरलाल नेहरू डाइड, मैं बता रही हूँ आपको, यूनानिमस इलेक्शन का मतलब हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट लीडर हु वाज यूनानिमसली इलेक्टेड बाय द बाय एवरीवन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकंड मिनिस्टर जो थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद, जवाहरलाल नेहरू की डेथ का कोई किसी को कुछ पता है क्या? I think Jawaharlal Nehru died in 1964 if I'm not wrong, है ना? जवाहरलाल नेहरू की डेथ 1954 1964 में हुई थी ना शायद, मैं देख लेती हूँ। करेक्ट, आई वाज करेक्ट, 1964 में हुई थी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ जवाहरलाल नेहरू देयर वाज अ और ह्यूज क्वेश्चन दैट नाउ हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज 1964 में बहुत ज्यादा मेच्योर, हमारा इंडिया काफी ज्यादा मेच्योर था, और इस टाइम पे एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाना वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर अस। तो अभी एक क्वेश्चन आता ना, हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। तो हुआ क्या था, डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री was unanimously elected by the by everyone to be the prime minister of India, ठीक है। 19 तो क्या हुआ, आपको अभी दो चीजें पता लग गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was unanimously elected to be the president of India। secondly, after death of the Jawaharlal Nehru in 1964, in May 1964, क्या नाम है आपका, लाल बहादुर शास्त्री was unanimously elected to be the prime minister of India, ठीक है। इन ऑल, तो हुआ क्या था, इन ऑल 284 मेंबर्स। तो जिस दिन आपका पास हो रहा था ये, जिसका यानी कि 24 का जब ये पास हो रहा था, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो एट दैट टाइम ओनली 284 मेंबर्स प्रेजेंट। हम लोगों ने ऑफिशियल कॉपीज को साइन किया था, जो कि 26 नवंबर को, 26 जनवरी को आई थी, जिसको इसको हम खुशियां मनाते रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, ठीक है। Although constitution was ready on 26 November 1949, but was delayed till 26 January 1950 because in 19 मैंने तुम्हें बता दी ऑलरेडी, 1929 on this day Indian National Congress demanded vote Swaraj in Lahore session under the leadership of Jawaharlal Nehru. Some of the of those elected to citizenship provisional or as were given an immediate effect. ये पूर्ण सुना था। Constituent Assembly took 2 years, 11 months, 18 days to complete the constitution. Originally it had 395 articles, 8 schedules, ठीक है, 12 schedules अब है, 22 पार्ट है और 448 आर्टिकल्स, ठीक है, 448 आर्टिकल्स हो गए आपके, ठीक है, 12 schedules हो गए आपके, और 22 पार्ट्स हो गए आपके, ठीक है। Constituent Assembly adopted our national flag on July 22, 1947. It was designed by Pingali Venkatesh, ठीक है, on आंध्र प्रदेश, ठीक है। जुलाई 22, 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था। द आइडिया टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय एम और द पॉलिटिकल, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। द आइडिया टू द आइडिया दैट के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो किसने बनाया है, एम राव ने, ठीक है, वो भी हमारे पॉलिटिकल फिलोसफर। क्लियर? Yes, ma'am. एक बार इसको पढ़ो 2 मिनट के लिए।
चलो पढ़ लिया सबने। नेक्स्ट ये याद है ना MS राव का, इन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब ये आता है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल की ओरिजिनल कॉपी है ये। ठीक है, प्रियम्बल में ये लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आप ध्यान से देखेंगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन को इस तरीके से बनाया है कि सारी की सारी अथॉरिटी दी गई है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए बनाया है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सारा दिया गया है कि पीपल ऑफ इंडिया इज द आर द ओनली सोल पावर टू द इंडिया। ठीक है, यानी कि जहां से पावर जितनी कहीं से पावर ड्राइव होती है, वो ड्राइव पावर कहां से होती है, इंडिया के लोगों से। तो लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, यानी कि अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ टू गवर्न द कंट्री इज ओनली इन द हैंड्स ऑफ पीपल। दिस इज व्हाट प्रियम्बल सेज, मैं तो नहीं कहती है। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलिमनली रिजॉल्व्ड इंडिया कंस्टिट्यूट इनटू द सॉवरन रिपब्लिक सोशलिस्ट एंड क्या हो गया आपका, एक हो गया डेमोक्रेटिक। आपको मैं आप बता दूं, सेक्युलर जो वर्ड है, दिस वाज द, आप अगर आप देखेंगे इसमें सेक्युलर आपको कहीं वर्ड नजर नहीं आ रहा, कहीं दिख रहा है आपको, दिस इज द ओरिजिनल कॉपी, दिस इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रियम्बल ओरिजिनली। अच्छा इट्स ठीक है, पहले मालूम बताती हूँ, ये ओरिजिनल कॉपी है आपकी, अगर आप देखोगे तो यू कैन ओनली फाइंड सॉवरन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट और आपका सेक्युलरिज्म नहीं है इसमें, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म नहीं है इसमें। ये ब्लर है यार, इसको कैसे अभी दिखा, थोड़ा तो ब्लर रहेगा यार, इतनी तो आंखें हैं हमारी, अच्छी खासी दिख तो रहा है। सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, तो ये तीन चीजें दे रखी है। हाउएवर जो अभी जो इसको अमेंड करके दो नए वर्ड ऐड करेंगे हैं, जिसका जो है सोशलिस्ट और सेक्युलर। बट आप देखेंगे सोशलिस्ट सेक्युलर स्टार्टिंग में नहीं था, ओरिजिनली नहीं था, सोशलिस्ट सेक्युलर बाद में ऐड किया है, यानी कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976। ठीक है, क्लियर हो गया। है ना? तो so originally the preamble only consisted three words, democratic, sovereign, republic। एक बार पढ़ लेते हैं, इनका sovereign का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, इंडिया should be the independent nation in matters of internal matters and external matters, यानी कि इंडिया should be independent enough to take its decision internally externally। ठीक है, and next democratic, we the people of India rule the country, democracy है यहाँ पे where the people rules। ठीक है, people will elect its own representative to govern the country। नेक्स्ट आता है आपका रिपब्लिक, रिपब्लिक बेसिकली का मतलब क्या होता है, हेड ऑफ द कंट्री इज प्रेसिडेंट। राइट, नाउ द टू वर्ड्स जो मैंने बताया आपका सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म जो वर्ड्स हुए आपके, these two words were added by the Indira Gandhi in 42nd through 42nd amendment 1976। and I think you must be aware about the fact that 26 के 1975 में इमरजेंसी में डिक्लेयर हुई थी, तो काफी सारा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए 42nd अमेंडमेंट लाया गया था बाय इंदिरा गांधी। and 42nd अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये याद रखेंगे, काफी सारी चीजें मैं नहीं लिखती हूँ बट प्लीज याद रखेंगे, 42nd अमेंडमेंट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हो गया। ठीक है, लिखना है क्या, ये भी लिख देती हूँ, चलो। by Indira Gandhi, 42nd amendment also known as mini constitution। क्लियर हो गया यहाँ तक आन्या। एंड एक बच्चे का मुझे नाम प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, ये क्या लिखा है, नंत, आई डोंट नो, जोया, तनिषा, रीना, अंतरा एंड विजय, स्पर्श, आईफोन, सहेज, आन्या। एम आई क्लियर टिल हियर? ओके चलो।
अच्छा, एक क्वेश्चन अब यहाँ पे आता है जो मुझे आपको बताना है इम्पोर्टेंटली। प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल? प्रियम्बल इज अ प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? प्रियम्बल इज अ प्रीफेस और इंडियन। किसी को कोई थक तो नहीं गया क्या बच्चे? थोड़ी लॉन्ग क्लास है आज, कोई थक गया है क्या? बोलो तो 2 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक ले ले। मैम ब्रेक ले लीजिए कुछ। क्या कह रहे हो बेटा? ब्रेक ले लेते हैं। रीना के अलावा और कौन कौन चाहता है ब्रेक हो? काइंडली रेज योर हैंड्स। आई विल ओनली लिसन टू द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। हाँ, तुम्हें पहले ब्रेक चाहिए आईफोन। अच्छा, चलो, इम्पोर्टेंट है। प्रियम्बल करने के बाद खत्म करेंगे, फिर दो दो ये और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, ठीक है? अपने आप ही मैं स्टार्ट कर दूंगी। ये 32 हो रहा है, कितना हो रहा है टाइम? ये 7:32 हो रहा है। तो मैं, क्या नाम है, 7:40 तक आई विल बी स्टार्टिंग। ठीक है, 7:40, बहुत टाइम दे दिया है। आप लोग 7:40 तक वापस आ जाना, ठीक है?
चलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? हेलो, चलो गुड। नेक्स्ट है आपका, बस इसी को कर रहे हैं, बाद में इंडियन पॉलिटी का पार्ट बाद में भी करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रीफेस और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि प्रियम्बल का मतलब होता है कि इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इफ आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो ये बोला जाता है जस्ट रीड द प्रियम्बल वंस, यू विल गेट all of the things, you will get an explanation what constitution of India actually consists. So it's in preface or the introduction of the constitution. But ironically ये बात है, irony क्या है इस चीज की कि constitution से पहले अगर आप constitution पढ़ेंगे ना, constitution की बुक से पहले ही पन्ने पे आपका preamble दिखता है। But it's a very ironically बात, irony वाली बात ये है कि ये ना आपका सबसे लास्ट में बना है, यानी कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में ये प्रियम्बल को डिजाइन कराया गया है, ठीक है। यानी कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका, उसके बाद में ये प्रियम्बल को बनाया गया है बेटा, ठीक है। ये बात हो गई। नेक्स्ट की बात होती है आपकी, नेक्स्ट थिंग इज कि क्या प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन or not? तो we have to study two cases, ठीक है। आर वेलुवारी केस है, नेक्स्ट है आपका केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस और दूसरा है आर वेलुवारी केस। तो आर वेलुवारी केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट preamble is not a part of the constitution. Not a part to the constitution. But whereas in Keshwananda Bharti case, Supreme Court held that preamble is a part of the constitution. Yes. And Keshwananda Bharti case, ये 13 जजेस की बेंच थी और ये अभी तक का सबसे बड़ा केस रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी जज बेंच रही है। एंड मोर ओवर इसी केस में बोला गया था दैट फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी एवरी, ये बोला गया था इस पर्टिकुलर केस में पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, preamble is the part of the constitution or not the part of the constitution. We have for this, in order to know the answer, we have to study two cases, R Velubari and Keshwanda case. Velubari case में बोला गया था preamble is not a part of the constitution, whereas Keshwanda में बोला गया था preamble, and this is the latest judgment. केशवंदा भारती ने इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया था, ठीक है, इस जजमेंट को ओवररूल किया था और बोला गया था कि आर वेलुवारी केस में गलत ठहराया गया है, प्रियम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और जैसे हर चीज हर पार्ट पे अप्लाई होती है, हर प्रोविजन पे अप्लाई होती है, द सेम विल बी एप्लीकेबल ऑन द प्रियम्बल एंड हेंस प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दिस केस द भारतीय जज केस जो है आपका 30 जज बेंच का केस है, 13 कॉन्स्टिट्यूशन जज बेंच है, अभी तक का सबसे बड़ा जज बेंच का मतलब होता है हाउ मेनी जजेस आर देयर इन द सुप्रीम कोर्ट इन ऑर्डर टू डील विद दिस केस। तो केशवनाथ भारती केस को 13 जजेस ने सुना था, इसी को बोलते हैं 13 जजेस बेंच। मोर ओवर इसमें यह भी बोला गया था पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, दैट इज पार्ट नंबर 3, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया? यही बोला गया था। KP classes dedicated to excellence.